تو جی دوستو السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں جی میاں ہاؤس. تو ہمیں بلال بھائی نے بلایا تھا کوریج کرنے کے لیے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جو انہوں نے ایک کانفرنس رکھی ہے اس کا مقصد کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بلال بھائی؟ الحمدللہ. یار آپ یہ بتائیں کہ کیا مقصد ہے آپ کا کانفرنس رکھنے کا؟ کانفرنس رکھنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ شیخوپورہ کے نوجوانوں کو جو آج کل نوکریوں سے محروم بیٹھے ہیں ان کو نوکریاں دلوائی جائیں. ایک ایسا پریشر بلڈ اپ کیا جائے جس کی وجہ سے دوسرے ادارے والے لوگ بھی اس چیز کے اوپر فوکس کریں اور ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں دیں. کے لیے حافظ رضوان صاحب جہاں بھی ہیں پلیز سٹیج پر پہنچ جائیں. حافظ رضوان صاحب جہاں بھی ہیں سٹیج پر آ جائیں اور ہم باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ, لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نوجوان کو جو شیخوپورہ کا درد رکھتا ہے اور یہاں پر میاں ہاؤس میں موجود ہے, ہم تہہ دل سے سب دوستوں کو ویلکم اور شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے بھی نوجوان یہاں پر پہنچ چکے ہیں ہم سب کا دل اور دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سب میرے ساتھ ایک دفعہ ببر شیر کا نعرہ لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ شیخوپورہ کا نوجوان جب اکٹھا ہوتا ہے, شیخوپورہ کا نوجوان جب کسی مقصد کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس مقصد کو پورا کر کے ہی اپنے گھروں کو لوٹتا ہے. ببر, سب ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ نعرہ لگائیں گے ببر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. ہمارا آج یہاں پر جمع ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ شیخوپورہ کے نوجوان کو روزگار دیا جائے. شیخوپورہ کے نوجوان کو روزگار ملے گا تو شیخوپورہ ترقی کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ شیخوپورہ میں جتنی فیکٹریز ہیں, جتنی انڈسٹری ہے, شیخوپورہ غالباً دوسرے یا چوتھے نمبر پر آتا ہے انڈسٹری کے حوالہ سے. تو میرا یہ آپ سے سوال ہے, میرا شیخوپورہ کی انتظامیہ سے سوال ہے کہ کیوں شیخوپورہ کے نوجوان کو نوکری نہیں دی جاتی؟ کیوں شیخوپورہ کا نوجوان پاکستان کا نوجوان نہیں ہے؟ شیخوپورہ کے لوگ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا شیخوپورہ کسی اور ملک میں آتا ہے جو شیخوپورہ کے نوجوان کو
शेखपुरा में आप फैक्ट्री लगा तो सकते हैं, मगर शेखपुरा में आप नौजवान को नौकरियां नहीं देते। इसलिए मियां बिलाल अमजद साहब ने ये दर्द को महसूस किया और ये मुनासिब जाना कि क्यों ना हम एक जगह पर इकट्ठे हों और तमाम नौजवान इस बात पर मुतहर्रिक हों और तमाम नौजवानों तक सोशल मीडिया के जरिए से, मीटिंग्स के जरिए से और इस कट के जरिए से तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे, तमाम लोग इस बात से सुरखरू हों, उनके इल्म में हो कि शेखपुरा के नौजवान को नौकरी क्यों नहीं दी जाती। मैं मियां बिलाल अमजद साहब का और अपने कायद मियां जवेद लतीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी सोच हमेशा शेखपुरा की तरक्की पर रही है। उनकी सोच, उनका नजरिया ये है कि उनका शेखपुरा तरक्की पाए। शेखपुरा का नौजवान आज अगर बेरोजगार रह जाएगा तो वो किस काम का। हम आज ये अज़म करेंगे, ये दावा करेंगे और सोशल मीडिया के जरिए, इस शेखपुरा की इंतजामिया के जरिए इस बात को अपने पूरे शेखपुरा में फैलाएंगे कि शेखपुरा के नौजवान को नौकरियां क्यों नहीं दी जाती। और बहुत जल्द, कुछ ही देर बाद मेरे और आपके लीडर मियां जवेद लतीफ साहब आपसे खुद आकर इस टॉपिक पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम के बाद हम इस बात को शेखपुरा के घर घर तक पहुंचा के रहेंगे और इंतजामिया को बताएंगे, फैक्ट्री मालिकान को बताएंगे कि आप शेखपुरा में फैक्ट्री तो लगा सकते हैं मगर इधर के नौजवान को नौकरी क्यों नहीं देंगे। हम अगर मियां बिलाल अमजद साहब की बात करें तो यहाँ पर हर चेहरा, हर दोस्त उनके नाम से बखूबी वाकिफ है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी के दौर से निकले और उन्होंने शेखपुरा के नौजवान के लिए मेहनत की, शेखपुरा के मसाइल को अपना मसाइल समझा और बड़ों की क़यादत और बड़ों की दुआएं लेकर आप सब में निकला और आज वो एक शेखपुरा में नुमाया किरदार के तौर पर जाना जाता है। मियां बिलाल अमजद साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने शेखपुरा के नौजवानों के बारे में सोचा। आप शेखपुरा में नौजवानों के बारे में एक सोच रखते हैं, एक मुस्बत सोच रखते हैं और आपने इस बात को भी बार बार करवाया है कि कोई नौजवान असला लेकर, कोई नौजवान लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो तहरीक है, ये जो कायद फोर्स है, ये किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाई गई। अगर ये बनाई गई है तो शेखपुरा के नौजवान के लिए बनाई गई है ताकि शेखपुरा का नौजवान तरक्की करे और पाकिस्तान नेशनल लेवल पर शेखपुरा का एक नाम हो। जितने भी दोस्त पंडाल के अंदर अभी आ रहे हैं हम उनको एक दफा फिर वेलकम करते हैं और अब मैं मजहर सियाल साहब को दावत दूंगा जो चेयरमैन कायद फोर्स हैं। मजहर सियाल साहब आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद जितने भी ग्रुप यूथ विंग से जिनका ताल्लुक है सबको खुश आमदीद कहते हैं। यूथ किसी भी माशरे में हमेशा से रीढ़ की हड्डी का रोल अदा किया है। यूथ पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान का जब ख्वाब देखा गया तब से लेकर आज तक
कोई भी रोल हो उसमें हमेशा अव्वल रोल यूथ का ही हुआ है। तो रज़वान भाई ने काफ़ी बातें की इस डेरे में। जैसे पहले कई मीटिंग्स, कई जलसे मियाँ बिलाल अमजद साहब ने किए, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं। लेकिन आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद, यहाँ पे ये यूथ कन्वेंशन रखने का जो मकसद, जो पर्पस है, वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले भी हमेशा बानी कायद फोर्स मियाँ बिलाल अमजद साहब नौजवानों के हकूक के लिए निकलते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, हुकूमत को जो भी मामलात मद्देनजर रखते हुए वो जंग तो दोस्तों, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास करम नवाजी है। ये उसकी जात का खास लुत्फ़ करम है कि उसने मुझे आप जैसे दोस्त दिए, आप जैसे भाई दिए। तो सबसे पहले सारे भाई तालियां बजाते देखिए, वैसे तो एजेंडे सबके पास होते हैं, सभी लोग निकलते हैं और लोगों को ये बात कह देते हैं कि हम आपकी गली भी बनवा देंगे, आपके बिजली के खंभे भी आगे करवा देंगे, आपको नादरा की गाड़ी भी दे देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर किसी ने भी आज तक ये बात नहीं की कि भाई आपके घर में नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, आपके नौजवानों को ये फैक्ट्रियों वाले नौकरियां नहीं देते, आपके लिए कुछ करते हैं। ये सवाल किसी ने भी नहीं उठाया। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। आप फैसलाबाद से शेखपुरा की तरफ आ जाए, बहुत फैक्ट्री हैं। आप लाहौर से शेखपुरा की तरफ आ जाए, बहुत फैक्ट्री है। शेखपुरा से सरगोजा की तरफ चले जाए, बेशुमार फैक्ट्री है। मगर शेखपुरा के नौजवानों को उनमें से कोई भी नौकरी नहीं देता। जब आपके भाई ने, आपके खादिम ने उनसे ये बात की कि आप हमारे शहर के शहरियों को नौकरियां क्यों नहीं देते, तो वो ये बात कहते हैं कि ये लोग इधर गठजोड़ कर लेते हैं। हमने उन्हें ये बात की है कि अगर हम गठजोड़ कर लेते हैं तो आप उनको निकाल लें, मगर बकाया जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, आप उनको तो नौकरियां दें। एक मिनट यार, एक मिनट। देखें, प्रोसीजर बड़ा सीधा सा है। और पीछे आवाज आ रही है मुजम्मल। प्रोसीजर दोस्तों बहुत सीधा सा है। आप सारे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप सारे टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। इधर से जाते हुए हर बंदे ने एक वीडियो बनानी है अपनी, और उस वीडियो में ये बात कहनी है कि शेखपुरा के नौजवानों को नौकरियां दो। आप इधर कितनी तादाद में बैठे हैं, कई हजार लोग आपको देखते हैं। अगर आप सब अपनी आईडियों से एक एक वीडियो इस नौकरी के मुताबिक बनाकर लगाएंगे तो आप लिख कर रख लें, आपको नौकरियां मिलेंगी इंशाल्लाह। इसी तरह
जितने बकाया दीगर लोग हैं वो अपनी अपनी आइडियों पे इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखें, हम पुरअमन हैं, ना हम ये बात कहते हैं कि हम रोडों पर धरने देंगे, ना हम ये बात करते हैं कि शहर को बंद कर देंगे। पुरअमन तरीके से निकलेंगे, पुरअमन तरीके से सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हुए नौकरियां लाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक मसला तो ये था। दूसरा मसला सब्जी मंडी में पेश आया। हम चंद दोस्त थे, इसी तरह सब्जी मंडी में चले गए। बकाया सब लोग अपनी अपनी रेहड़ियां लगा रहे थे। आप ही की तंजीम के नौजवानों को वही कहते थे कि तुसी नहीं रेहड़ियां इतने लानिया, तो हमें इतने रेहड़ियां भी लान देंगे। अरे भाई, वो क्यों ना रेहड़ियां लगाए? वो भी अपने घर से अपने बच्चों का रोजगार कमाने निकलते हैं। हम आपको ये थोड़ी कह रहे थे कि आप बकाया सबको पीछे करके सबसे आगे निकाल दे, नहीं। बात हक की करते हैं तो बात सीधी करते हैं। आपके भाई ने उनसे बात की, आज वो रेडियो उधर लगी है। इसी तरह ये छोटी छोटी जंगें हैं दोस्तों जो हमें लड़नी है। पहले भी हम तमाम जंगों पर खड़े होते हुए आए हैं, लड़ते आए हैं, मगर इस दफा अगर लड़ना है, इस दफा अगर निकलना है तो अपने हक के लिए निकलना है। इस दफा अगर लड़ना है तो एक नौजवान की बका के लिए निकलना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सब खड़े हो जाएंगे आपकी जोरदार ताली में मियां जुनेदी का। ये सब इधर होगा। थोड़ा जा बेटा पीछे, थोड़ा जा, आप भी पीछे हो, और पीछे आप भी बेटा सामने हो, थोड़ा जा खुले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल कदर मुझे एक नई सोच, एक नई फिक्र, एक नया बलबला देने वाले नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो बात करने लगा हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपने मुझे एक नया बलबला, जोश, हिम्मत दी है। मुझे जब ये आपका कायद फोर्स का निशान, कैप जो पहनाई, जो आपने पहनी है सबने, इसकी लाज रखते हुए एक बात कहने लगा हूं। बात यह है कि मुझे अपनी सियासत का ईंधन बनाने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है, ना बनाऊंगा, बल्कि आप की जो जरूरत है, सियासत होती रहेगी, मगर जिस चीज की निशानदेही कायद फोर्स के लीडर ने कही, वो हमारी जरूरत है। मियां बिलाल
हमारी बुनियादी जरूरत है। हम उम्र के जिस हिस्से में आज आप हैं, आपसे वालिदैन की तवक्कुआत हैं, आपके बहन भाइयों की तवक्कुआत हैं, मगर जिस तरह के मियां बिलाल कह रहे थे कि सरगोदा रोड हो, फैसलाबाद हो, रोड हो, लाहौर रोड हो, भाई जब ज़राई जमीन खत्म हो गई, वहां इंडस्ट्री ने जगह ले ली, जो कोई खेती बाड़ी करता था वो रोजगार कमाने से महरूम हो गया। तो वहां जो फैक्ट्री लगी है, आपको वहां के रहने वालों को हिस्सा देना होगा इसलिए कि बताएं, जो निशानदेही इन्होंने की मैंने भी सुना। लोग फैक्ट्री वाले कहते हैं कि मकामी लेबर इसलिए नहीं रखनी कि ये तंग करते हैं या इनको निकालना मुश्किल होता है, और दूर से आए हुए मेहनत मजदूरी करने वालों को निकालना आसान होता है, या वो कमजोर होते हैं, मकामी उनको सपोर्ट नहीं होती। तो इसमें 2-4% लोगों का गुनाह हो सकता है, मगर 95% मकामी शहरियों को आप उस जुल्म की या उस पॉलिसी की भीड़ चढ़ा दी, ये कहां का इंसाफ है। ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद जाऊंगा तमाम फैक्ट्रीज में और उनको पहले ये बताएंगे कि 70% मकामी लेबर रखना आप पे लाजम है। 30% आप या टेक्निकल लोग आप रखें। अगर यहां क्वालिफाई नहीं करते बच्चे, मगर ये कोई तरीका नहीं कि यहां क्वालिफाई भी करते हो, टेक्निकल हुनर जानते भी हो, मगर महज इसलिए उनको ना रखा जाए कि वो मकामी है। ये नाइंसाफी है। इंशाअल्लाह मैंने कहा कि इस कैब की लाज रखते हुए नौजवानों को रोजगार इन फैक्ट्रियों में जरूर दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो बात थी कि हम इस प्लेटफॉर्म से, बल्कि मैं तो आपके जोश जज्बे को देखते हुए, नौजवानों की सोच को देखते हुए मैं ये कहता हूं कि सियासत छोड़ो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खिदमत खलक कर लीजिए। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो मसाइल है हमारे, जो जरूरत है नौजवानों की, वही कर ले तो अल्लाह भी राजी, मखलूक के खुदा भी राजी। ये काम करने वाला। और अगर उसने मौका दिया, उसने अपना फजल करम रहम फरमाया, तो ये भी वादा करता हूं कायद फोर्स से कि इंशाअल्लाह ताला ये लाजिम बना देंगे कि 70% मकामी लेबर हर फैक्ट्री रखा करेगी। ये लाजिम करवाएंगे। अब मैं दो चीजें और अर्ज करना चाहता हूं। आपके जज्बे को, आपके जोश को, आपके होश को देखते हुए, ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, ये शहर आपका है तो मेरा भी है। हमने अमलन इस शहर, इस रियासत के लिए कुछ करना है, कुछ करके जाना है। और वो कैसे कर सकते हैं? हमेशा ये होता है
कि कोई सियासी जमात या कोई सियासी लीडर कहता है मैनू जिताओ, मैनू इलेक्शन खड़ा करो, मैं जित जावांगा तो मसाइल हल करांगा। नहीं, हम पहले मसाइल हल करेंगे और उसके बाद अगर आपके मेरिट पर, आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे तो फिर अगली बात करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि नौजवान को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ा दें, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते उसकी उम्र बीत जाए, ना नौकरी मिले, ना वालिदैन की खिदमत कर सके और ना माशरे के लिए कोई अच्छा नाम, नेक नाम पैदा कर सके, और फिर उसके बाद सियासी जमातें उसको नजरअंदाज कर दें, किसी और को ले आए। नहीं, हम